नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट की, जिसमें यह कहा गया है कि Q3 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 6% यानी 6% घटी है और ग्लोबल गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में 2% की गिरावट आई है तीसरी तिमाही में। और हालांकि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग बढ़ी है और माफ़ कीजिएगा, सेंट्रल बैंकों की जो बाइंग है Q3 में वो घटी है 26% और सेंट्रल बैंकों ने Q3 में 337 टन गोल्ड यहां पर बाई किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं WGC के रीजनल CEO सोम सुंदरम PR साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिवली। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोम सुंदरम साहब। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो ग्लोबल ट्रेंड है डिमांड का, जिसमें 6% की गिरावट हम फॉल देख पा रहे हैं, ये क्या सिग्नल है? क्या अभी डिमांड कुछ और ड्रॉप होने वाला है या आपको लगता है कि अब डिमांड चूंकि एक सेफ हेवन बाइंग का माहौल बना है तो अब डिमांड यहाँ पर हम बढ़ता हुआ देखेंगे? Yeah, it is not actually a trend. Yeah, 6% down for the quarter. There are very specific reasons. First of all, last year, same quarter was one of the best quarters. So you are comparing with a high base. Right. Therefore, 6% seems to be a big drop, but there is no trend in this. Gold demand continues to be very strong across categories and across geographies. First one. Central bank continues to buy. This is one of the biggest quarters, third quarter, September quarter for central bank buying, 337 tons. Although compared with last year, it is 27% down. But Okay. 337 tons is one of the biggest buying in quarter three by central banks. 800 tons have been bought by central banks for these 9 months in this calendar year. So gold demand is intrinsically very strong. But price action and various factors individually have affected the jewelry demand and also bars and coins. Right. Bars and coins are down 14% overall globally, and ETF continues to show outflows because of the US interest rates. So there is no trend in this, but it is a very specific quarterly matter of a slight drop. But we see the gold demand as a very strong, Right. in a very strong position. ओके फाइन सर। अब जरा हमें ये बताएं आप कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपका व्यू क्या है? क्या भारत में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड, अगर मैं आपसे पूछूं जो कि प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो क्या इंडिया में भी ज्वेलरी की डिमांड कुछ कम होने वाली है अगर मैं आगे के लिए आपसे पूछूं, या आपको लगता है कि डिमांड इंटैक्ट रहेगी? See, when it comes to jewelry, there was a 7% jump and a 20% jump in bars and coins. First of all, Indian demand, gold demand is very, very strong. You see that every time there is a drop in price, you see a very big spurt in demand. But what is happening currently is at 58,000, 60,000 range. The consumers are not ready to take that big jump. They are still comparing these prices or linking these high prices to the geopolitical developments, the war. So they think that if the war it's localized, if that abates, price will drop. So that's a very simple equation that consumers work on. Therefore, you find that they are on the fence. They don't want to make big purchases. They want to buy minimal. But every time there is a softness in price, like it happened this quarter, 2% drop in price over already high price, you saw that bars and coins demand went up 20%. Right. So what we see is there is a strong latent demand which will get unleashed when there is a softness in price. Okay, fine. So next week Diwali है सोम साहब, तो what's your take for Diwali? Do you see demand will increase during Diwali? See, generally there will be a seasonal uptick in demand. Oh, definitely it will happen. But will it be as strong as last year? Will it be as strong as 2021 when we saw one of the best December quarters, 345 tons? It is a little difficult to say because, as I said, people still perceive this price as something. They have seen 58,000, 57,000 even in the last few months. So they think, okay, maybe it dropped down. Maybe that's a normal expectation of any consumer. They want to buy more gold for the same amount of money. Given that, we think that there will be an uptick in demand, but it may not be as high as one would have expected, given the latent demand.
ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच सोम सुंदरम पीआर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्लोबल गोल्ड डिमांड ट्रेंड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करने के लिए कि अभी आगे डिमांड का सिनारियो क्या रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं आज के लिए, क्योंकि हमने एक पोल किया है नेक्स्ट वीक के लिए, उसमें तो सब लोग तेजी बता रहे हैं कि गोल्ड 62,000 या उससे ऊपर भी जा सकता है दिवाली के दौरान, लेकिन आज के लिए गोल्ड में क्या करें? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि कल बहुत बड़ा इवेंट है। अपार्ट फ्रॉम ये वॉर सिचुएशन और एफओएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज्ड यहाँ पे रहता है, तो मुझे लग रहा है कि एक अपटिक जो है वो कॉन्फिडेंट एक मूव आएगी यहाँ पे। आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है। वहाँ पे 61,250 के लेवल पे मुझे लग रहा है बाइंग करनी चाहिए। 61,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 61,150 का, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी ज्यादा है 61,550 से लेके 850। उससे ऊपर की अगर क्लोजिंग होती है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बार 62,500 तक के जो लेवल्स हैं वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये हर्डल जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई अभी से मूव आ सकता है। ओके, सिल्वर पर क्या कमेंट है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि सेम व्यू में यहाँ पे जाना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हो सकता है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हम एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देखें। और 72,600 के करीब आता है सिल्वर, अभी थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 73,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,350 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार अगर क्लोजिंग 73,000 से ऊपर की होती है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो करीब करीब यहाँ पे 74,400 का बन सकता है सिल्वर में। ओके, क्रूड पर आपका कमेंट। कच्चे तेल में कल तेज गिरावट का माहौल बना था, आज के लिए क्या व्यू है आपका? क्या करें क्रूड में? क्रूड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गहरा सकता है। यहाँ पे जो डिप है, आज चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी यहाँ पे जो है वो खराब होके आया है, तो एक प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 69.25 के लेवल पे एक बार सेलिंग मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी। 68.50 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 69.55 का। बहुत ज्यादा डाउन साइड क्रूड में हम इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो वॉर बना हुआ रह सकता है। ओके, मेटल में कोई कॉल वंदना जी आज के लिए आपकी? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि चाइना का डेटा पीएमआई खराब होके आया है और दोबारा 50 के लेवल्स के नीचे है। ये निश्चित तौर पर इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए बढ़िया संकेत नहीं है। जिंक इस पे काफी रिएक्ट कर रहा है, तो 221 के करीब यहाँ पे जिंक में बिकवाली की सलाह रहेगी। 219 से 218 तक का यहाँ पे एक टारगेट हो सकता है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 222 रुपए 50 पैसे का। ओके, अब आते हैं एग्री पे। एग्री में वंदना जी जीरे में क्या हो रहा है? मतलब आज देखिए 6% का लोअर सर्किट, कमाल है। 44,000 के नीचे आ गया देखते देखते। 64-65,000 का जीरा, अब बताइए 44,000 के नीचे आ गया। बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्यजनक मूव थी। जितनी तेजी से ये बढ़ा नहीं, उससे ज्यादा तेजी से ये गिरा है मृत्युंजय जी, और 20,000 तक का फॉल हम लोगों ने बिल्कुल कुछ हफ्तों में आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो निश्चित तौर पे स्पॉट मार्केट में भी एक पैनिक है और लोग वहां पे जो अपना स्टॉक्स है उसको भी रिलीज यहाँ पे कर रहे हैं। और वहां पे बहुत ज्यादा लिवाली नहीं है, लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि 44 से 40 का भी एक भाव आता हुआ दिखे, और इसकी वजह से एक डल सेंटिमेंट्स की वजह से भी यहाँ पे फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा तेजी नहीं बन पा रही है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल टूटना चाहिए 44,000 वाला भी, तो 44,500 के करीब सेलिंग इनिशिएट करने की सलाह दूंगी। 43,800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 44,800 का। और मुझे लगता है कि मेजर जो संकेत है, जब तक स्पॉट मार्केट से नहीं आएगा तब तक फ्यूचर्स यहाँ पे ड्राइव नहीं होगा, या तो इंटरनेशनल मार्केट से अगर एक्सपोर्ट डिमांड आती है, क्योंकि अपनी जो क्वालिटी है, इंडियन पैरिटी जो है, ये कॉम्पिटिटिव अब मार्केट में होती हुई दिख रही है काफी बढ़िया। बहुत शुक्रिया आप वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मार्केट में चल क्या रहा है और कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।